Assalamu alaikum everyone. This is Zile Huma, your English subject instructor from tutorial.pk. I hope you all are doing great. In this video, I'm going to discuss direct indirect narration. So basically, direct and indirect narration का मतलब ये होता है कि हम किसी के words को किस तरह से आगे बयान कर रहे हैं. Direct narration means quoting somebody else's words exactly. जैसे कि Azhar said, I am coming. Now I am exactly quoting his words which is I am coming. लेकिन जब हम indirect speech की बात करते हैं, indirect speech means explaining someone else's words into your own words. For example, Azhar said that he was coming. तो यहाँ पे मैंने I के बजाय he use किया, which shows that I am explaining his words into my own words. So this is known as indirect speech or reported speech. So basically, if you look at this example, Azhar said that he was going. There are two clauses which are connected by using that. The first clause is Azhar said, and this clause is known as main clause. And the second clause is he was going. This clause is known as reported clause or reported speech. So basically, first clause is connected with the second clause by using a linking word which is that. तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो लिंकिंग वर्ड यूज़ किया जाता है वो या दैट होता है या इफ़ होता है या फिर वेदर होता है. और अगर आप फर्स्ट क्लॉज में देखें, सो आफ्टर अजर आई हैव यूज्ड सेड. दिस सेड इज़ नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. सो बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, if the second clause is dictating some kind of order, so I would say that Azhar ordered. If the next clause is in the form of question, then I would say Azhar asked. If the next clause is in the form of some request, then I would say Azhar requested. So it means that reporting verb depends on the nature of second clause. So when we are converting direct speech into indirect speech, there are two changes which are being taken. The first change is, which is quite prominent, वो ये है कि इसका टेंस चेंज हो जाता है और ये वेरी करता है, यानी कि हर टेंस अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है. द नेक्स्ट चेंज विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट इज दैट प्रोनाउंस यूजुअली ऑल्सो दे आर चेंज्ड व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. यानी कि अजहर सैड आई एम कमिंग वुड बी कन्वर्टेड इनटू अजहर सैड दैट ही वाज कमिंग. नाउ आई इज कन्वर्टेड इनटू ही. Now there are some rules in which we change different sentences in different tenses. So first of all, I would like to talk about present tense. कि present tense में हम direct speech को indirect speech में कैसे convert करते हैं. So first of all, we have present indefinite tense. So the first example is Asif said, I travel a lot. तो हम present indefinite tense को simply past indefinite tense में change करते हैं. For example, Asif said, I travel a lot would be converted into Asif said that he traveled a lot. I would become he क्योंकि pronouns change किए जाते हैं. और traveled में इसलिए change किया गया है because this belongs to past indefinite tense. Now when we talk about present progressive tense or present continuous tense, so when we are changing direct speech into indirect speech, we change present continuous tense into past continuous tense. For example, Asif said, I am traveling would be converted into Asif said that he was traveling. अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा तो एक लिंकिंग वर्ड लाजमी लगेगा. अब इफ़ और वेदर का यूज़ मैं बाद में डिस्कस करूंगी. जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स में वो दैट होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इफ़ वी हैव एन एग्जाम्पल फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी वुड चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आसिफ सैड I have traveled would be converted into Asif said that he had traveled. So in simple words, we can say that present tense is converted into past tense when we are changing direct speech into indirect speech. Now let's talk about past tense कि past tense किस तरह से change होता है. Suppose we have this example from past indefinite tense. Asif said I traveled. So this would be changed into past perfect tense. For example, Asif said that he had traveled. यानी कि past indefinite को past perfect में change किया जाता है. इसी तरह जब हमारे पास past continuous tense की example होगी, we would change that into past perfect tense. For example, Asif said I was traveling would be converted into Asif said that he had been traveling. यानी कि I जो है वो he में change हो जाएगा और was change होगा had been में.
इसी तरह जब हमारे पास एग्जाम्पल होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, सिवाय प्रोनाउन के यहाँ पे टेंस का कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि आसिफ सेड आई हैड ट्रेवल्ड वुड बी चेंज्ड इनटू आसिफ सेड दैट ही हैड ट्रेवल्ड। अब दैट तो लगना ही है और आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज टेंस में कोई चेंज नहीं आता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स फ्रॉम फ्यूचर टेंस एज वेल। तो फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे विल को सिर्फ वुड में चेंज करना होता है, इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कि मुकम्मल टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आसिफ सेड आई विल ट्रेवल। नाउ दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू आसिफ सेड दैट ही वुड ट्रेवल। लिंकिंग वर्ड दैट वहीं आ गया, आई जो है वो चेंज हुआ ही में और सिर्फ आपने विल को वुड में कन्वर्ट किया है, अदरवाइज आपने ट्रैवल की फॉर्म चेंज नहीं की, बिकॉज दिस इज अ रूल दैट व्हेन यू आर यूजिंग अ मॉडल वर्ब, सो आफ्टर दैट यू कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑलवेज रिमेन्स द सेम व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर अ मॉडल वर्ब, यानी कि ट्रैवल ट्रैवल ही रहेगा। इसी तरह जब हमारे पास एग्जाम्पल आती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, जैसे कि आसिफ सेड I will be traveling. Now this would be converted into Asif said that he would be traveling. इसी तरह से जब फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही चेंज होगा, Asif said I will have traveled. Now this would be converted into this example, Asif said that he would have traveled. यानी कि फ्यूचर टेंस में बहुत ही मामूली चेंजेस आते हैं, टेंस में इतने ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं आते, आपने सिर्फ विल को वुड में चेंज करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब ये रूल सारे सिंपल सेंटेंसेस पे अप्लाई किए जाते हैं। व्हाट इफ़ वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस, तब हम उनको कैसे चेंज करेंगे? तो टेंसेस के रूल्स तो वैसे ही हैं, लेकिन कुछ बाकी ऐसे चेंजेस हैं जो उनमें डिफरेंट आते हैं। और सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस होता क्या है। सो बेसिकली क्वेश्चंस उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिनमें हम कोई इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। एंड ऑन दी होल वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द फर्स्ट टाइप इज non-polar questions. Now non-polar questions are those questions which cannot be answered in the form of yes or no, which means that they require a detailed answer. For example, where are you going? अब इसका जवाब आप कभी भी yes या no के आंसर में नहीं दे सकते, यानी कि आपको इसका एक डिटेल्ड आंसर देना होगा। तो इनके लिए हमारे पास रूल ये है, नॉन पोलर क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल रूल है, वो ये है कि हमने हमेशा इंटेरोगेटिव वर्ड लगाना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल आसिफ सेड, तो इसके बाद आप कभी भी लिंकिंग वर्ड ऐड नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज़ एन इंटेरोगेटिव वर्ड लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इसके अलावा आप कोई भी वर्ड नहीं लगा सकते, यानी कि लिंकिंग वर्ड बिल्कुल भी नहीं लगता। Now let's discuss the first example of non-polar questions. The policeman said, "Where do you live?" The policeman asked me where I lived. अब आस्ट के बाद आपने मी देखा होगा कि वो क्यों लगाया गया, वो इसलिए लगाया गया है ताकि क्लैरिफिकेशन हो सके कि सेंटेंस किससे पूछा गया है। सो यू कैन सी दैट आफ्टर यूजिंग द रिपोर्टिंग वर्ब वी हैव यूज्ड इंटेरोगेटिव वर्ड। देयर इज नो लिंकिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस, ना ही इफ, ना ही वेदर या फिर दैट यूज़ किया गया है। सिमिलरली वेयर इज जूली, शी आस्क्ड वेयर जूली वॉज। एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि टेंसेस के रूल्स वैसे ही अप्लाई होते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो दूसरा चेंज है जो बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है दैट यू हैव टू यूज़ एन इंटेरोगेटिव वर्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। द थर्ड एग्जाम्पल विच वी हैव इज ही सेड वेयर इज़ द नियरेस्ट मॉस्क, ही आस्क्ड वेयर द नियरेस्ट मॉस्क वॉज। द फोर्थ एग्जाम्पल इज द टीचर सेड व्हाट आर यू डूइंग, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। The last example which we have is Mr. Maqbool said, "When will you finish the project?" So this would be converted into this sentence, Mr. Maqbool asked me when I would finish the project. So I hope कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपने सिर्फ इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास नॉन पोलर क्वेश्चंस आते हैं you can use interrogative word after a reporting verb, but you cannot use a linking word. Now let's talk about polar questions. So polar questions are those questions which are answered in the form of either yes or no. They do not require any detailed answers. For example, do you like fruits? So इसका आंसर आप yes या no की फॉर्म में दे सकते हैं, इसका कोई डिटेल आंसर नहीं दिया जाता। अब इसका रूल जो है नॉन पोलर से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, बिकॉज when you are using a reporting verb
After that, you have to use a linking word, which is if or whether. You cannot use that as a linking word in polar questions. और if और whether में डिफरेंस ये है कि अगर सिंपल क्वेश्चन किया गया है आपसे, यू हैव टू यूज इफ, बट इफ दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ टू चॉइसेस, तब आप वेदर यूज करेंगे. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपके पास ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, डू यू लिव इन लाहौर? She asked me if I lived in Lahore. Now you can see that I have used if here because there are no such choices given. The next example which we have is, do you like coffee or tea? He asked me whether I liked coffee or tea. The third example is, did you study economics at university? He asked me if I had studied economics at university. So you can see that tenses rules are followed. But here are some rules for polar questions which are different from non-polar questions. अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हम कमांड्स भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं. सो रूल्स फॉर सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो आर डिफरेंट फ्रॉम polar and non-polar questions. So what we do here is that after a reporting verb, we use infinitives. अब infinitives क्या होता है? Infinitive mean to plus first form of verb. यानी कि आपने टू यूज़ कर देना है उसके बाद किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक, विच मीन्स कि आपने जब भी कोई ऐसा सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में देखा इन विच देर इज सम काइंड ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, you would convert it into indirect form by using linking verb plus infinitive. Again, you cannot use a linking word that, if or whether here. For example, could you pass the raita please? He requested me to pass the raita. The reason why I have used requested here instead of asked or said is that, like I already discussed it, that linking verb basically talks about the nature of the next clause. तो यहाँ पे जो next clause था वो एक रिक्वेस्ट थी, इसीलिए उसको शो करने के लिए हमने लिंकिंग वर्ब रिक्वेस्टेड यूज़ किया है. इसी तरह इफ़ वी हैव सम क्लॉज, इफ़ वी हैव सेंटेंस फ्रॉम एन ऑर्डर, तो हम कहेंगे शी ऑर्डर्ड हर टू गो टू स्लीप. और अगर हमारे पास कोई सजेशन है, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड यू शुड डू मोर एक्सरसाइज, सो दिस वुड बी कन्वर्टेड लाइक दिस, my father advised or suggested me to do more exercise. So you can see that when we have different kinds of sentences, so their rules do vary. लेकिन tenses के rules सबके लिए same होते हैं. I hope you have understood it very well. This is Zile Huma, your English subject instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.